जय सच्चिदानंद। हरे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. हरे हो जी प्याराजी, हरे हो जी प्याराजी, सहारा विना बीज उगતું નથી. सहारा विना बीज उगતું નથી. हरे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. जगत को संगे जदुख, जगत को संगे च दुख, केवल सत्संगे ज सुख. केवल सत्संगे च सुख. दादाजी नो हसतो मुख, दादाजी नो हसतो मुख, शमने दर्शन थाता सुख. समणे दर्शन थाता सुख. हीरा मोती महाराजे, हीरा मोती महाराजी, સમૃદ્ધ સત્યા વિના ડલડું ઠરતું નથી. समृद्ध सतिया विना डलडू ठरતું નથી. હરે ઓજી દાદાજી, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખો લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે, વિરહુ દિવસ રાત જાગે, વિરહો દિવસ રાત જાગે, જ્ઞાની ભવની પાવટ વાંગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, રોકુ અતિક્રમનાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આત્મ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હારે ઓજી દાદાજી, हारे हो जी दादाजी, હરે ઓજી પ્યારાજી, हारे हो जी प्यारा जी. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद के त्रिमंत्र આપણે નવ કલમો બોલાવીએ. દિવ્યાબેન નવ કલમ આવડે છે? ઓકે, પપ્પા બોલશે. ઓકે, શ્રેયા 1, પપ્પા 2, મોનિકા 3. શ્રેયા
हे सच्चिदानंद, हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, साध्वी के आचार्य अवनवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોળ ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોળ ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, मैंने कोई पण देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री, पुरुष, अगर नपुंसक गમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. તો મને ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષગર પરોક્ષ જીવંતગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન ત્રિમંત્ર બોલાવશો? અમે ફોલો કરશું. નમો વિઠ્ઠલાય. નમો નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાનમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાનમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોએ છવચાવનમ. નમો લોય સવ સામણમ. યાચો પંચનમ કાલો. એસો પંચનમુકારો. ચૌવ પાવ ફનાચનો. સવ પાવ પરાશનો. મંગલમ ચ ચૌવચમ. મંગલાણમ ચ સર્વેશિમ. ફલમ હવૈ મંગલમ. પરમં પવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। मोनी का कोई दूसरा आने वाला है? हाँ, खुशी है ना, अच्छा, किधर गुम हो गए? यही पर है। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डेली प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद।
हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और सत्संग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय कयो और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ भी जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। प्रेया हाँ जय सच्चिदानंद। ही दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शनों पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसे आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। दिव्याबेन हमने आपके हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हमने आपके बच्चे, हमने हमने आपके आपके बच्चे हे बच्चे बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल दिल के के हैं हे सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है हे कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे। अच्छे अच्छे। वेरी गुड दक्ष। ఈశ్వరాత్మకల పలుగు దక్షిణగే ఈశ్వరాత్మకర परमानेंट दक्ष टेम्पररी ఈశ్వరాత్మకర फ्रियालो दक्ष रिलेटिव है जय सच्चिदानंद દિવ્યાબેન સેપરેશન પ્રેયર આવડે છે ગુજરાતીમાં? ઓકે, જો શ્રેયાબેન બોલશે તમે સાંભળજો. ઓકે શ્રેયાબેન. हाँ जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। દાદા ભગવાન ક્યાં છે શ્રેયા આપણે દિવ્યાબેન? महाविद्या चेतुलमा શું કહ્યું? महाविद्या चेतुलमा શું કહ્યું શ્રેયા? આ વિદ્યા ક્ષેત્રમાં હે? હા નહીં, દાદા ભગવાન દિવ્યાબેન. દિવ્યાબેન શ્રેયાબેન, દાદા ભગવાન ક્યાં છે તમારા દાદા ભગવાન? આપણી અંદર વેરી ગુડ, તમારી અંદર છે. ઓકે દિવ્યાબેન, દાદા ભગવાન આપણી અંદર છે. ओके ओके, आज 3 दिन कैसा रहा? डेली एक्टिविटीज का सिंसियरिटी। मोनिका दीदी जय सच्चिदानंद। मैंने जोर से बोलो, हमको सुनाई नहीं देता है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए। हाँ मैंने 3 दिन में सैटरडे संडे को मैं जल्दी नहीं उठी थी, मैं लेट उठी थी। और साथ ही मुझे सैटरडे संडे को बहुत आलस आई, क्योंकि ठंड थी और मुझे बहुत सोने का मन कर रहा था। और मैंने स्टडी ठीक ढंग से नहीं की और एक्सरसाइज की नहीं की। तबीयत अच्छी नहीं थी? तबीयत अच्छी थी, बट वो ठंडा था, इसलिए सोने का मन कर रहा था। ठंडी बहुत है चेन्नई में। हाँ, वो कल बारिश है कह रहे हैं, इसलिए ठंड है आज। ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ओके हाँ। खुशी दीदी जय सच्चिदानंद। मैंने 3 डेज में सुबह सैटरडे संडे को मैं सुबह जल्दी नहीं उठी थी,
एक्स्ट्रा स्टडी मैंने कंप्लीट नहीं की थी, मैंने होमवर्क ही किया था स्कूल का दिया हुआ, और मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की थी, सुपर ब्रेन योगा वो रह गई है, सोने से पहले कर दूंगी। हाँ, जो वीकेंड में किया था सैटरडे संडे। हाँ ओ वेरी गुड। श्रेया दीदी। हाँ जी सच्चिदानंद, सैटरडे संडे को उठने में मेरा डी था, मैं नहीं उठ पाई थी ठंडी की वजह से, और मैंने एक्स्ट्रा स्टडी की थी और मेरा एक्सरसाइज भी हो गया था। ठंडी होती तो खाने का बंद हो सकता है, काम नहीं कर सकते तो खाने का बंद हो गया था। हाँ खाने का बंद हो गया था सारे दिन। श्रेया। हाँ हाँ आप बोला मोनिका दीदी। खाना तो खाते हैं तोरल दीदी। मैंने एक्स्ट्रा स्टडी की थी और मैंने एक्सरसाइज की। दक्ष भैया। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा हाँ, मेरा दिन वीकेंड में एक संडे को ए ग्रेड था और सैटरडे को डी ग्रेड, और मैंने डेली ब्रेकफास्ट मेरा ए ग्रेड था। हाँ, और मेरा नहीं ऐसे सैटरडे को बोल, इसे हाँ। जनरलाइज करने का। ओके, हाँ एक्सरसाइज होते। ओके दिव्या बेन, सूर्य नमस्कार તમને ખબર છે? हाँ, તમે કરો છો એવરીડે? હું નહીં કરતી પણ પપ્પા કરે છે. તો પપ્પા સાથે કરવાનું રાખો. ઓકે, ઓકે. અને સુપર બ્રેન યોગા ખબર છે તમને? હા, ખબર છે. તમે કરો છો? તમે કરો છો? હજી નહીં કરી. ઓકે, પપ્પા કરે છે? ના, એમને કામ પર જવાનું હોય ને વહેલું વહેલું એટલે પછી. તો સાંજને તો તમારે કામમાંથી આવે તો તમારે બંને સાંજે કરવાનું. ઓકે, ઓકે એવરીડે. ઓકે પપ્પાને કહેવાનું ચાલો આ બે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, બરાબર? બરાબર. ओके वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। ओके, देखो बच्चों लोग, ये आप नहीं करते तो उसका कुछ पेन होता है कि नहीं? होता है. तो होता है तो ये क्या लिखा है? कोई पढ़ो जोर से। श्रेया जोर से पढ़ो। pain. Every pain gives a lesson, and every lesson gives and every lesson changes a person. इसका हिंदी करो प्रदीप दादा के लिए। मोनिका। क्या कहा? प्रदीप दादा के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करो। हमें जिस चीज में हमें दुख होता है, उसमें दर्द होता है, वो हमें एक समझ आती है, और वो हमें लेसन की तरह अपनी मिस्टेक से हमें सीखने को मिलता है। जो हम मिस्टेक No, से no, 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 सीखते हैं, just translate it, just translate it. अक्षिका का है? दिव्या बेन? हाँ, अक्षर भाई गुजराती में ट्रांसलेट करो प्रदीप आनंद जी में। દરેક પીડા આપણને પાઠ ભણાવે છે. દરેક પાઠ વ્યક્તિને બદલી કાઢે છે. Thank you. See, this is called translation. मोनिका दीदी अब हिंदी में करो। हर दर्द हमें
सिखाता है और वो दर्द हमें उस जो हमें सीखा था वो हमें वर्जन में बदलता है। ओके, तो अभी डेली सिंसियरिटी में किसी को दुख होता है? हम्म, हाँ बोला, ना बोला किसी ने? हाँ, मोनिका जल्दी जल्दी बोलो ना। मुझे जब मैं नहीं, हाँ, एक्स्ट्रा स्टडी जब पूरी नहीं नहीं होती है नहीं नहीं तब नहीं, दिस इज ओवरऑल। दर्द होता है। एक बात की बात नहीं है। जो कुछ पेन होता है खाली एक्स्ट्रा स्टडी की होता है आपको? नहीं, क्या कहा? आपको पेन किसका दुख होता है नहीं होता है तो? ओवरऑल एक वीक में देखेगा। ठीक। खुशी? मैं जब सत्साधन नहीं करती हूँ तब मुझे दर्द होता है। आज नहीं हुआ है। होता है, रियली होता है? ये क्या बोलता है? एवरी हाँ, लेसन चेंजेस ए पर्सन। आप चेंज हो गया उसमें से? नहीं हो? ओके, मैं प्रदीप दादा ये बात करो कि जिसके पर दुख होता है, जिसके पर अच्छा नहीं लगता है, वो लेसन है और बाद में चेंज होता है फिर। प्रदीप दादा, अच्छा, हाँ इसके बारे में बात करो। क्या बताने का है? तो कहो, किसके बारे में बताने का है उन लोगों को? जो डेली एक्टिविटी नहीं हो पाती है तो हाँ। उस पे दुख होगा, तो ये आ, ये ये क्या नाम भूल गया, ये प्रेसिडेंट का बोलते हैं कि उसमें से पार्ट मिलता है, तो पार्ट मिलता है तो आदमी चेंज करते हैं। हम्म। तो इन लोगों को ये डेली एक्टिविटीज देखो, किसी को एक प्रॉब्लम है, मोनिका को एक प्रॉब्लम, श्री आपको कुछ है प्रॉब्लम? नहीं, डेली एक्टिविटीज। ओके, आपको तो सब ये आते हैं। तोरल आपको? क्या? अब नहीं सुनते? मैं ये सुन डेली रही एक्टिविटीज जो कोई क्या चीज नहीं हो पाती है रेगुलरली? मैं समझी नहीं। एक ही चीज है मोनिका, ओनली वन थिंग? मोनिका, हाँ, ओनली वन थिंग? नहीं है हाँ तो, नहीं। हाँ तो उसको देखो। तो प्रदीप दादा, इन लोगों को दुख नहीं होता है तो वो चेंज नहीं पाता है। तो ये प्रेसिडेंट दुख बोलता है तभी कि होता भाई है। दुख होता है तो चेंज होएगा। दुख तभी होता है कि हमें उनकी सही कीमत समझ में आवे कि आज मैंने पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं की अथवा जो मैंने डिसाइड किया था वो नहीं हुआ, तो उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है, वो जब समझ में आती है वो हिसाब से उनको पेन होता है। जितनी जैसी समझ इतना पेन होता है। और ऐसा हो गया है कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो पेन का सवाल ही नहीं आता है। बराबर? हाँ, बात समझ में आया? और दूसरा, और हम चेंज कभी होते हैं तो कि हमें ये पूरे जो परिस्थिति है उसका पूरा हमें अभ्यास हो कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, कैसे ये गड़बड़ हो गई, तो फिर वो उसमें सुधार कर सकता है। लेकिन जो उनकी अलर्टनेस नहीं है, जो उनको ये चीज दिखती नहीं है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। समझ में आया? जैसे हाँ, कि हम खड्डे में गिरना नहीं चाहते, लेकिन हम स्पीड से चलते हैं और खड्डे में गिरे तो फिर जो हमें थोड़ी बहुत
अनसेफ हो गए तो फिर हमें उस समय समझ में आ जाता है कि अगर गिर गया होते तो अपने को बहुत बड़ी चोट आती। तो अपने दूसरी बार ध्यान रखना है, बराबर। दूसरा, जब ज्यादा बुद्धिमान होता है वो खुद को अंदर तलाश करता है, झांकता है कि इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत थी, अपने को सोच समझ के साथ चलना चाहिए। तो फिर वो कैसे नॉर्मलिटी में रहने का, कैसे जागरूक रह के चलने का, वो उनको सब फिर उनके अंदर सिस्टम अपने आप डेवलप हो जाती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पेन तभी होता है कि इंसान को ये जब बात समझ में आवे कि जो ये मैंने किया इससे मुझे ज्यादा नुकसान हो गया, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, अगर मुझे इस सिस्टम से चलना चाहिए। जब तक समझ नहीं है, उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती है, तब तक कोई भी आदमी उसमें सुधार आना बहुत मुश्किल है। और कहने से सुधार आता है वो सुधार नहीं है, लेकिन खुद इंसान, स्टूडेंट्स खुद जब खुद को झांकता है और खुद के लिए जब सोचता है और देखता है तो इमीडिएट एक्शन में आ जाता है। क्या होता है, जो उनको पता चलता है कि मेरी सिंसियरिटी में कमी आ गई, इससे मुझे नुकसान बहुत हो गया, उसको हार्ट में चोट आती है। कहाँ चोट आती है? हार्ट में। फिर वो भूलेगा नहीं, उसका पूरा प्लानिंग करेगा कि कैसे अभी करना है, किसी भी हालत में मुझे ये करना है बस, क्योंकि उसका ध्येय होता है। लेकिन जब तक वो समझ की कचास है, कोई कहेगा और हम करेंगे, कोई करेगा, वो जो लंबा नहीं टिक सकता है। हर एक इंसान को खुद को झांकना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। उसके अलावा रास्ता नहीं है कोई। वो जो रास्ता है कोई बताएगा, कोई बोलेगा, तो थोड़ा टाइम के लिए ठीक है, लेकिन उसमें हार्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लेकिन और जब ये चीज आ गई कि मुझे एक भी मिनट वेस्ट नहीं करनी है, बस आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरा खुद का नुकसान हो ऐसा काम मुझे करना नहीं है। वो जब बात समझ में फिट हो गए, फिर उनको सिंसियरिटी के लिए बोलना नहीं पड़ता है। वो कभी भी वो समय, समझो उन्होंने जो डिसाइड किया वो समय पे नहीं हुआ तो दूसरे समय में भी वो कवर कर लेता है। बात समझ में आई? हाँ। समझ में आया? हाँ। क्या समझ में आई खुशी? हमें दुख हमें दुख तब होता है कि हमें लाइक उस थिंग को वैल्यू नहीं किया। अभी मैंने सत्साधन नहीं किया तो मुझे उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। और अच्छा, आपको वैल्यू है सत्साधन का? है, बट वो आलस की वजह से मुझे ज्यादा नहीं ना, दिखती वैल्यू है तो क्या वैल्यू है सत्साधन का? ये इम्पोर्टेंट है, इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होती है, और दादा के मार्ग में हमें आगे भी ले जाएगा। वेरी गुड। मोनिका दीदी, आपने समझा? मुझे जिस चीज में भी मैं वैल्यू नहीं करती हूँ उसमें मुझे अभी भी मैं उसमें कच्ची हूँ, बट मैं सिंसियर रहूंगी और साथ ही उसको वैल्यू करूंगी और सत्साधन हर रोज करूंगी और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और वीक स्टडी जिसमें भी मैं वीक हूँ उसमें मैं टाइम भी दूंगी। नहीं करेगा तो क्या फायदा होगा? नहीं करूंगी तो मुझे एग्जाम में दिक्कत होगी, लास्ट मोमेंट में रिवीजन का टाइम नहीं होगा और
तो ये तो सब डाइट ही बात करते हैं, इम्प्लीमेंट कब करेगा अभी देखेंगे। ओके। और हाँ कुछ ही और आपका रिजल्ट आया कि नहीं है किसी का? आ गया। नहीं भेजने का है? भेजने का है, कब सत्संग के बाद। कब कब नेक्स्ट ईयर? नहीं, सत्संग के बाद कब आया रिजल्ट? Jan 2 Jan 3 तो Jan 6 Jan ओके। 6 को। और छोटी का कैसा है रिजल्ट? छोटी का सभी सब्जेक्ट में ठीक है, बट तमिल में फिर से सब में फेल हुए? नहीं, हाँ। तमिल में सभी में ठीक है, बट तमिल में फिर से फेल हो गए। तो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। हाँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट में वो अच्छी है, बट तो, वो तो तमिल में पढ़ाई कॉन्सेंट्रेट नहीं करते तो ही अच्छा है। वेरी गुड। ओके श्रेया, क्या बताया प्रदीप दादा? प्रदीप दादा ने ये बताया, जो जो हमको समझ आएगी तो हमको दुख होगा और हमको इम्प्रूवमेंट करनी है। और जब हम किसी भी नहीं, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ ओके, आपको तो कुछ करने का नहीं है ना। ओके, वेरी गुड। जैसे कि प्रदीप दादा ने ये बताया, जैसे मैं जल्दी उठता नहीं हूँ, तो मुझे उसकी वैल्यू नहीं है कि मैं जल्दी उठता नहीं हूँ। आप नहीं, क्या वैल्यू है? आप लेट नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है तो? मैं स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ कभी कभार। तो चलता है, टीचर जाने देते हैं स्कूल में? मतलब दादा हमारे स्कूल में सेकंड 2 गेट्स है, तो एक गेट थोड़ा जल्दी बंद होता है और एक गेट थोड़ा लेट। तो चलता है स्कूल में? हाँ चलता है। और इसलिए आप लेट होते हो। ओके ओके। सो बच्चे लोग देखो, आपने ये आपका जो वीकनेसेस है, आपका कमजोरी है डेली एक्टिविटीज में, जरा दो चार दो तीन whatever it is, पिक करके प्लीज change yourself. Okay. Okay. ओके। और चलो प्रदीप दादा, आप बोलने का है, कुछ ऐड करने का है? नहीं, वो जो अपने वो बोलते थे ना कि वो सत्साधन के बारे में, तो सत्साधन जो है ना, वो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का है। वो हम आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये सत्साधन करने से हमें पहला फल आज्ञा का मिलता है। तो इसीलिए उनकी वैल्यू बहुत है। तो और दूसरी जो चीज है, वो सत्साधन ऐसी चीज है कि वो हमें विनय भी आ जाता है, और दूसरा नेगेटिविटी से हमें दूर रखता है, जिसे 9 कलम नमस्कार विधि वो विनय बताता है। और तीसरा जो शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है, वो कन्फेशन जो है कि जो अगर हमारे जीवन में जो भी गलती हो गई है, तो हम हार्टिली प्रेयर क्षमा चाहते हैं। वो शुद्धिकरण प्रोसेस है कि गलतियों से मुक्त होना है। तो जो भी चीज है, फिर वो स्टडी में हो, खाने पीने की बात हो, कपड़े की बात हो, फ्रेंड सर्कल की बात हो, धर्म की बात हो, हर चीज को हमें सही ढंग से समझना चाहिए और समझने की जरूरत है। तो हमें डिसीजन अपने आप ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है। लेकिन जितनी समझ कच्ची होगी, इतना हमें नुकसान ही आएगी। जितना परफेक्शन होता जाएगा,
इतना फायदा होता जाएगा। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि भगवान और भगवान के बाद कोई भी इसमें कोई कर्ता और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर दादा भगवान ने बताया कि यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। जो हमें नुकसानी होती है, कम मार्क्स आती है तबीयत के बारे में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर निमित्त कोई भी हो, लेकिन ज्यादा तक हमारी कुछ न कुछ गलती होती है, तभी ये सफरिंग का संयोग आता है। इसीलिए हमें बहुत समझ के साथ जीवन जीना चाहिए। समझ में आया? हाँ ज्ञानी पुरुष होते ही नहीं है, और होते हैं तो मिलते नहीं है, और उनकी आज्ञा की तो बात ही कहां पर दूर रह गई। अगर हम सबको जो ये आज्ञा मिली है, दादा भगवान ने खुद ने बताया था कि ये आपको प्रेयर करना है। जो अगर आपको सुखी होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको प्योर होना है, तो ये चीज करने जैसी है। अब समझ में आया? इसलिए फर्स्ट बेनिफिट आज्ञा का है, दूसरा बेनिफिट सिंसियरिटी का है, तीसरा बेनिफिट जो है वो खुद का अंदर जो चेंजेस आता है, मीन्स प्योरिटी, फिर बाद में जो एनर्जी, कंस्ट्रक्टिविटी, वो सब अंदर डेवलप होती जाती है। विनय, वो सब हमारे में ये गुण डेवलप होता है। क्या होता है? सभी देवी देवताओं का राजीपा होता है, इसलिए हमें बहुत सारी संसार व्यवहार में हेल्प मिलती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक चीज है। और ये अगर शायद आप लोग भूल जाओ, अगर कभी भी नहीं हो सके, स्टडी के कारण हो, तबीयत का कारण हो, कोई ऐसा व्यवहारिक कारण, लेकिन आपको हार्टिली प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। दादा भगवान ने बताया कि भाई ये आपने सत साधन नहीं किया तो बाय हार्ट आपको प्रायश्चित करोगे तो मैं आपको क्षमा कर दूंगा, मतलब मैं जमा ले लूंगा कि आपने सत साधन किए हैं, उसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन उसका सही में इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आलस आ गई, वो हो गया, टीवी देखा, फ्रेंड्स के पास बैठे रहे और हमने नहीं किया, ये किया, वो फिर माफी मांग लेते, वो पोल है, क्या है वो? पोलम पोल है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी इंसान पढ़ता है, एक्सरसाइज करता है, धर्म करता है, किसके लिए करता है? बोलो। हम जो कुछ भी करते हैं हमारे खुद के लिए करते हैं। फिर सेकेंडरी जब माँ बाप को, भाई को, पड़ोसी को, दूसरों को जो बेनिफिट मिलता है वो सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट बेनिफिट किसको होता है? हमें बोलो, पहला फायदा किसको होता है? हमें होता है। तो हमें जो फायदा होता है वो काम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और फायदे की बात समझना चाहिए कि नहीं? समझनी चाहिए। और फायदे के लिए हमें स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। हाँ, चलो हो जाएगा। हाँ, ओके, चलो, जय सच। जय सच्चिदानंद। देखो, कुछ ही हमने बताया था ना वेकेशन में छोटी के साथ तो तेलुगु बुक्स पढ़ने का, हाँ तो वो बड़ी सिस्टर है, आप वो थोड़ा ध्यान रखना मांगता है ना। हाँ इट्स नॉट योर मदर टंग, तो प्रॉब्लम होता है, तो स्टडी हार्ड करने का है, किताब पढ़ो एक्स्ट्रा। ओके, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय